خذوا ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ العلی العظیم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین کرام، میرا بزرگوں، ساتھیوں اور نوجوان دوستوں، آج کا دور وہاں انہوں نے یہ چاہیے تھو کہ ہم غیرانہ اسلام میں لیں اور انہوں نے دین اسلام کی دعوت دیا. حال اتنا برا ہو چکو کہ ہم قبیلہ برادری اور پھر اپنی رسم اور رواج کے اندر اتنا بٹ چکا، تقسیم ہو چکا کہ آج غیر جرائیں کہ وہ سارا مل گا کہ مسلمان یہ ہیں اور ہم آپس میں ہر ایک فرقہ جو ہے کہ وہ یا گل کہہ کہ دوجو جو ہے کہ وہی مسلمان ہیں، دوجو جو ہے کہ کافر ہے. یا انتہائی افسوس والی گل ہے. آج کا جڑا دو چار مسئلہ ہیں، ایک زکوٰۃ کو مسئلہ ہے اور نماز جنازہ تو بعد دفن تو پہلے دعا کو مسئلہ ہے، اذان قبر و دینی اس کو مسئلہ ہے تو اور ختم تو بعد درود پاک کو مسئلہ ہے. یہ چار مسئلہ جو ہیں کہ انہاں واسطے اتنا لوکل لوکاں نے اور لوکل جڑا علماء کرام ہیں انہوں نے یہ مسئلہ رکھا ہے. ہمارا سامنے جڑا مفتیان کرام بیٹھا بھی ہیں، انہاں کی طرفوں جو ہے کہ وہ تحریر ہمارے سامنے آئی، یعنی لوکل لوگوں نے پاس کی ہوئی انہاں کی طرفوں ہیں. انہوں نے یہ کیا کہ یہ چار مسئلہ ہیں: قرآن اور حدیث کی معتبر کتاب، قرآن اور حدیث کی معتبر کتاباں تو انہاں مسئلہ نہ حل کی ہو جاؤ. اب انہاں کی طرفوں جو ہے کہ دعوی ہے تو یہ جو ہے کہ انہاں مسئلہ نہ جو ہے کہ ثابت کریں. ہم بھی سنا کہ وہ کہڑا دلائل ہیں اور قرآن پاک کی کیڑی آیت ہیں کہ جنہاں تو یہ مسئلہ ثابت ہوئے ہیں. ہم جو ہے کہ ہم بھی سن گئے اس پر عمل کرنا. اگر جو ہے کہ انہاں مسئلہ ثابت ہو جائے تو ہم جو ہے کہ انہاں کا نال اپنا طور طریقوں جو کچھ بھی ہے اس نے چھوڑ گئے. اور اگر جو ہے کہ مارو کو انہاں مسئلہ ثابت نہ ہو سکے تو پھر مارو مسئلہ ثابت ہی ہے تو اسلام جو ہے کہ پھر جو ہے کہ مارا نال یہ ہو جائے گا. یہ بنیادی غلط ہی کہ جڑی میں تھارے سامنے رکھی. اس تو علاوہ جو ہے کہ قرآن اور حدیث تو ہٹ گئے جڑی کتاب لکھی گئی ہیں وہ نہ ہم بیچ میں رکھاں گا نہ یہ بیچ میں رکھیں گا. قرآن سب تو پہلو حوالو جو ہے کہ وہ قرآن پاک ہوا ہے اور دوجا نمبر وہ جو حوالو ہے وہ حدیث کی معتبر کتاباں تو وہ جڑی بھی رکھیں. اب جو ہے کہ یہ اپنا مسئلہ وہ جو ہے کہ وہ ثبوت دیں کیونکہ دعوی جو ہے کہ وہ انہاں کی طرفوں ہے کہ یہ بالکل درست ہے اور یہ ہے تو اب جو ہے کہ یہ ثابت کریں. آپ مفتی ہیں؟ آپ بھی مفتی ہیں اور آپ میں بھی تو مفتی ہے جی؟ آپ ہیں کیا اس سے منظور صاحب کہاں سے؟ مدرسہ مرکز ہماری بجلی سے. آپ بھی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں کی جو تحریر لکھی گئی ہے یہ اس میں آپ شامل تھے؟ مولانا اسلم صاحب بول رہے ہیں. آپ ہی ہیں؟ دوسرے طالب صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اس میں یہ زکوٰۃ ہے، قبر پر اذان دینا ہے، میت کے بعد دفن کے بعد دعا، نماز جنازہ کے فوراً بعد یہ ہے دفن کی پہلے کی دعا ہے اور قبر کے اوپر اذان کے فوراً بعد دعا کرنا بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. قبر پر اذان دینا، میت کے دفن کے بعد فوراً. ٹھیک ہے. نماز جنازہ کے فوراً بعد دعا کرنا، یہی ہے نا. اذان دفن کے بعد صلاۃ. یہ چار مسائل کے تعلق سے جو محترم نے کہا ہے یہ ہے نا چار مسائل. یہ ایک ہوتا ہے قانون. ہم اور آپ
जिस कानून के दायरे में बात कर रहे हैं ये कानून इलाही कानून अल्लाह और उसके रसूल के कानून के दायरे में बात करना है जी, ठीक है ना, ऐसे ही है ना, मतलब अपनी तरफ से तो कुछ कहने के लिए नहीं आए। कुरान और हदीस से साबित करना है। आपने ये कहा है कि कोई किताब हम बीच में नहीं लाएंगे अलावा कुरान और हदीस के, ठीक है, उसके अलावा आप कुरान और हदीस से हर बात साबित कर देंगे। हजरत बात यहाँ पर ये बात जो हो रही है, बात यहाँ पर आपसे ये की गई है कि बाकी सारी बातें हमने यहाँ पर कुरान और हदीस से साबित नहीं करनी। यहाँ पर जो ज़हर बहस मसला है हमारी गुजर बरादरी का, वो क्या है, मुरवजा तरीका, यानी गुजराओ तरीको यो है कि जनाजो हो, जनाजा होने के बाद फिर जनाजो रोकनो है, रोकने के बाद फिर खड़ा होगा शिकायत करनी है, शिकायत करते बाद फिर ले कब्रस्तान में दफन करना है। मसला ये है, आपने ये बात करनी है इस मसले पर कि क्या ऐसा करना है, ये जो तरीका है ये कुरान या हदीस से साबित है या नहीं। शिकायत नंबर 2 बाद होती है पहले होती है जी, ये बाद में करते हैं। मैं वही आपसे हम वही बात आपसे पूछना चाह रहे हैं। आप यहाँ आए हैं कि ये मसला साबित करना है कि भाई और कोई मसले यहाँ पर साबित नहीं करने, आप करेंगे आप सारे साबित करोगे, वो बहस यहाँ पर नहीं होगी। एक मसले से दूसरे बहस पर नहीं जाना है। आपने जो मसला करने हैं वो 4 करने हैं, 4 के अलावा कोई दलील नहीं देनी है, वही आपने साबित करने हैं। अगर आप साबित कर जाएंगे हम तैयार हैं, अगर नहीं साबित होंगे तो आप देख लेना फिर क्या होगा, फैसला वो करना है। असल आप जानते हैं कि असल शय में इबाहत होती है, मसला पढ़ा हुआ आपने, वो तो हमने पढ़ा है, वो इनको समझ याद नहीं आएगा। आपको याद होगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि हमने गुज्जर बरादरी को समझाना है, मुझे नहीं समझाना है। नहीं आपने कुरान से ये आयत, आपने कुरान से ये आयत साबित करनी है कि कुरान के अंदर कहा गया है कि ये शिकायत इस तरीके से दो और ऐसे करो, ये ऐसा करना जायज़ है, ये तरीका करना, इसको बताओ आप। तरीका ठीक है, आप ये बताइए कि असल शय में इबाहत है, वो बात हम मानते हैं आपकी। आप सुनिए ना, आप बीच में बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। जवाज की दलील देना, सुनिए उनकी, आपने आप कह रहे दावा आपका, आप बता के चले जाइए जी, हमें हम भी बताएंगे आपको, आप जरा आप भी बताएं ना, आप तशरीफ लाए, पब्लिक को सब पता चलेगा। गठुआ से तशरीफ लाए हैं, आप बठिंडी से तशरीफ लाए हैं, आप बताएंगे ना कि भाई आदम जवाज की क्या, उस पर आप हमें बताएं ना कि क्या आप पहले आपका दावा है, आपको दलीलें पेश करनी है। हमारा अभी आपका सवाल नहीं चलेगा मौलाना, इसमें आपका सवाल नहीं चलेगा। अभी जब तक आप साबित नहीं करेंगे, जब तक आप हमसे सवाल नहीं कर सकते, आप उस पर पहले दलील दोगे। क्या चीज? जो आपका दावा है उस पर पहले आप दलील दोगे। आपने उस तालिब को खड़ा करो और उसको दावा करेगा तेरा दावा क्या है? खड़े हो, आपको इजाजत दी, आप थोड़ा आराम से, आपने 2 बंदों को बिठाया बीच में, आप खड़े होकर के ऐसे कर रहे हैं जैसे कि बिल्कुल आप मुजरिम को खड़ा कर रहे हैं, ठीक है ना। अब ये अगर आपने इनको जिम्मेदार बनाया है, तालिब तो नहीं, अब ये तो नहीं कर रहे हैं ऐसा। असल में जो है उसूल की खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए कह रहे हैं कि हम खड़े होके बोलेंगे। अरे भाई मेरे, उसूल की खिलाफ वर्जी क्या हो रही है, उसूल क्या है, उसूल की खिलाफ वर्जियाँ क्या हैं, वो तो सब कौम को सबको बताएंगे, पता चल जाएगा सब कुछ। आपको तो मौलाना सरवर बात कर रहे हैं ना, आपको बीच में खड़े होने की बोलने की कोई नहीं इजाजत दी है। वो तो पहले चलो ठीक है, वो बैठ के चलो कोई बात। तो ये सब जान जाएंगे, उसूल सारे मौजूद है ना, सारे साबित करो उससे जो आपसे इन्होंने पूछा गया है वो चीज़ आपने साबित करनी। आप आदम जवाज की दलील देना हमें। मैं पहले तो आपने साबित करना है ना, आप जो है कि आदमी जवाब जब आप साबित कर देंगे। जवाब समझते हैं आप लोग, मुफ्ती साहब क्या करेंगे समझ में आ रही या ये कि मुफ्ती साहब या गल के कि तुमने यह सवाल कियो कि सकात जड़ी है अजान कब्र जड़ी है वह जायज नहीं है, ठीक है, तुम इसमें कुरान हदीस की दलील पेश करो, कित लिखी हुई है जायज नहीं, ये कोई गलत बात है। ये बात सुनो मौलाना, आप दूर जा रहे हैं। जिस वक्त आप अपने दावे को साबित करोगे ना, हमारा दावा खुद ही साबित हो जाएगा। दावा आपका है, जिस वक्त आप अपने दावे को साबित करोगे दलील से, हमारा दावा खुद साबित हो जाएगा जायज है या नहीं है। वो आपके दावे से चलेगा मौलाना, वो आपके दावे से चलेगा। जब आप अपने दावे को कुरान से साबित करेंगे, हमारा दावा खुद साबित हो जाएगा। जहाँ आप बोल रहे हैं मुझे मालूम है, हाँ मुझे भी मालूम है, लेकिन जवाज की सूरत बताए ना, आप कुरान हदीस में है ना, आप कुरान में बता दीजिए जनाब कहाँ नाजायज शिकायत करनी। हम आपको ये कहते हैं कि कुरान आप जो खड़े होकर करते हैं वो करने की आपके पास कुरान से कौन सी आयत है और हदीस से जो है कि क्या सबूत है। आप जो खड़े होकर करते हैं फिर हम बताएंगे ना कि आप कहाँ से बता रहे हैं, क्योंकि हमारे नज़दीक तो जो है कि
आइम्मा मुज्तहिदीन ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा किराम ने, खुलफाए अरबा ने, बल्कि सन 47 में ने, अभी से पहले तक ये इस तरह का कोई सिस्टम चला आया ही नहीं था। आपने एक आकर आपने नहीं बल्कि जो मुरवजा तरीक़ा है उसके मुताबिक एक ये तरीक़ा चल पड़ा है, आप उसके हामी हैं कि ये साबित है। अब साबित होने पर हमें दलील दें। हम तो जो है कि पहले से हमारे साथ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के दौर से लेकर तमाम बुजुर्गान दीन औलिया इज़ाम के दौर से लेकर आज तक यही तरीक़ा रहा है कि ये कुछ नहीं हुआ है। नमाज जनाजा के बाद फ़ौरन तदफीन अमल में आई है। अब आप जो काम कर रहे हैं इस सिलसिले में जो है कि आप साबित करेंगे ना कि हमारे सामने कौन सी कुरान की आयत है और हदीस पाक कौन सी है, तब तो हमें पता लगेगा कि भाई ये आज तक थी, हमारे इल्म में नहीं थी, हम जानते नहीं थे कि ये थी। अगर हमें पता लगेगा तभी तो हम कहेंगे कि भाई ये कितने जाविये तक है, इसका इल्मी इहाता क्या है। ये तो पहले आपकी तरफ से ना कि एक चीज़ सबूत है, एक चीज़ पेश की जा रही है, उसका तो पहले आपने सबूत करना है कि है, या तो अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो बस मसला ही ख़त्म है। ये तो पहले क्या मुनाजरे का ये उसूल है कि जो आदमी उसको साबित कर रहा है, वो दावा कर रहा है, वो अपने दावे को मुदल्लल करे। आपको ये मालूम है कि मुनाजरा, शरायत मुनाजरा के बारे में पता है आपको? आप मुनाजरा करने के लिए आगे वहाँ से, मैं भी आ गया हूँ। शरायत उसके बाकायदा उसूल होते हैं। यहाँ पर्चे के ऊपर क्या लिखा हुआ है, इधर देखें, इधर देखें, इधर आप जो है ना अपनी हर बात को से दरमी मत करें। यहाँ ये लिखा हुआ है, आप दूसरी बातों में मत जाएं। उसूलों के खिलाफ करने वाले और दोनों की तरफ से उलमा की इजाजत होगी। और ये यहाँ किसी के घर पे बात रखी गई है, ये हमारी तरफ से नहीं हुआ, हमारी तरफ से नहीं, क्या आप ही की तरफ से उधर से हुआ। आप ये देखें ना, ये आप बात सुनो मेरी, सबसे पहले असर के बाद बात मुतय्यन थी, असर के बाद होगी, आप ही लोगों ने मनसूख की 2 बजे होगी और 2 बजे से मनसूख होकर आप 3 बजे आ रहे हैं। मौलाना ये भी तो देखो, तरफ से हुआ, आप खुद 3 बजे आ रहे हैं, टाइम तो आप देखो। एक मिनट, अब 3 बजे नहीं बताने थे, मतलब कि हमारी फोन पे बात हुई, चाचा नूर नाल हमारी गल हुई कि हम किन्ने बजे इस गल नूं रखा, ते दादा बने एक दिन गल की थी, चाचा नूरा ने क्यों भी हम 2 बजे रखा, यानी ये आप ही की तरफ से उन्होंने ये बात कही कि हम इस बात को 2 बजे रखते हैं। उसके बाद आज सुबह दोबारा हमारी आपस के अंदर मतलब कि एक मशवरा हुआ कि इस बात को किस तरीके से निभाया जाए और कब ये रखा जाए। फिर हमने इनको फ़ोन किया, फिर यही जवाब आया कि ये बात जो है 2 बजे रखी जाए। मोहतरम को कुर्सी पे बैठा दें, मुझे लगता है इनको दिक्कत हो रही है पीछे। इनको बैठने दें, आप सुन लेते बात मेरी। फिर ये बात इन्होंने कही कि 2 बजे रखा जाए। असल मेरी बात सुन लेते, ये 2 बजे आप ही की तरफ से मतलब ये बात तय हुई है, हमारा इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पे आके यहाँ बैठे, हम तो पहले किसी आकर बैठे हमारी। अच्छा ये बताइए मुझे, ये जिस बात के ऊपर सबसे पहले तो ये मुनाजरा ही नहीं है, ठीक है? मुनाजरा जो मुनाजरा है ना, ये मुनाजरा नहीं, ये इन्होंने रखी है, गुफ्तगू रखी है, इस गुफ्तगू को मुकम्मल करना, साबित करना। किसी के घर में रखी थी, आपने हमें ये बुलाया, किसने? हमने नहीं बुलाया आपको, मुफ्ती साहब हमें से ये हमारी बिरादरी की दोनों फरीकों की आपस के अंदर बात तय हुई है, फिर हमारी दोनों फरीकों के मशवरे से हम यहाँ आए हैं और घर के अंदर ही लिखा है, फिर ये मशवरा दोनों फरीकों का आपस के अंदर हुआ है, तब यहाँ आकर आए। वक्त और घर को आप छोड़े, जो जिस बात के ऊपर बहस है उसको आप सामने रहा, अगर जायज़ है उसको कर दे, जो भी है। आप ये बताएं मुझे, जिन मसाइल पे आप गुफ्तगू करने के लिए आए, ये फराइज हैं या वाजिबात हैं या? मौलाना हम आपसे ये पूछने नहीं आए। क्यों नहीं पूछने आए? मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हमने ये यूं चले आए, आपने बताना है, आप क्यों नहीं? आपने बताना है मौलाना। अगर आप लाग बैस में नहीं जाना चाहते, यहाँ नहीं आना चाहते, अगर कौम के सामने आपकी बेटी पर नहीं आना चाहते तो आपको सब बताना पड़ेगा। एक मिनट, और अगर आना चाहते हैं तो फिर ठीक है। एक मिनट, देखो हमारा नजदीक ना ये फर्ज है, ना ये वाजिब है, ना ये सुन्नत है। हमारा नजदीक है ही नहीं, सीरतु साबित ही नहीं। हमारा नजदीक सीरतु साबित ही नहीं है, साबित ही नहीं है। साबित होने तो बाद ही अमल आवे कि फ़र्ज है, सुन्नत है, वाजिब है, मुस्ताहब है, नफल है, फिर उसकी क्या हकीकत है, सुन्नत मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है। हमारा नजदीक साबित ही नहीं। आप फुरूई मसाइल पे इतना वो सिलसिला बना करके यहाँ पे आ गए। मैं ये कह रहे हैं, आप ये मत करो ना, इन किताबों को रखो, आप अंदर जो बात है उसको करो, इनको आप रखो। क्यों नहीं? ये किसकी है? मैं कह रहा हूँ ये बात नहीं चलेगी। ये किसकी है? जो आप भागना चाह रहे हैं हम नहीं भागने देंगे आपको। ना हम याद रखो, इनको रखो अंदर। मैं कह रहा हूँ इससे नहीं भागने देगा। ये क्या बात कर रहे हो? ये खुद नहीं भाग सकते इंशाल्लाह। आपको भागने भी नहीं देंगे। मौलाना आप इसको रखो बीच में। मुसन्निफ मौलाना
आप इस किताब को नहीं मानते, आप इस किताब को बीच में रखो, उसके बाद मौलाना भागना नहीं पड़ेगा, आप सुनना पड़ेगा। किताब को नहीं मानते, इंशाल्लाह की लिखी हुई आप जो है कि सबसे पहले हमारे नजदीक सब तू मुसल्लम सब तू पहली किताब केड़ी है? बुजुर्गो बोलो कुरान है। लाओ कुरान तो पहले कुरान से साबित पहले करो। कुरान तो लाओ बाद में कुरान से आप हर चीज आप साबित बोलो कुरान से साबित करो। हर चीज आप साबित कुरान से इसका साबित करो। आपने कुरान शरीफ की पहली आयत पढ़ी, वही गलत पढ़ी आपने। वो गलत पड़ी, मुगालता होता है, गलती हो जाती है, भूल चूक इंसान से होती है, मैं मानता हूँ। कुरान शरीफ से साबित करने आए यहाँ पे। मैं आप जो है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की किताब कुरान पाक से इसका सबूत दिखाओ। उसके बाद आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मुस्तनद 6 किताबें हैं सिहाए सित्ता के नाम से। उसके अलावा हदीस की मोतबर किताबें हैं। अगर उनके अंदर नहीं है फिर तीसरे नंबर पर यहाँ आओ, आप ये लिख कर देंगे कि कुरान पाक के अंदर ये नहीं है, दूसरे नंबर पर हदीस पाक के अंदर नहीं है, तीसरे नंबर के अंदर जो है कि फिर आप आगे चलें। आप सबसे पहले कुरान का जी पर्चे के ऊपर इसमें कहीं लिखा है कि कुरान और सिर्फ हदीस और हाँ लिखा हुआ है कुरान और हदीस की मोतबर किताबों से। मोतबर किताब लिखा है, कुरान और हदीस की मोतबर किताबों से लिखा हुआ है। आप इस पर्चे को 1000 बार लगाएं, इस पर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। इस पर लिखी हुई है। सबसे पहले जो है कि ये कुरान पाक लिखा हुआ है कुरान और हदीस की मोतबर किताब, क्योंकि कुरान तो एक ही है, हदीस की मोतबर किताबें बहुत वसी किताबें हैं। बुनियादी जो है कि वो 6 किताबें हैं। सिर्फ यही इन्हीं पे इत्तिफाक कर रहे हैं आप मैं इन पर नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 6 बुनियादी है। हदीसें इसी में जमा करके ले आए आप। मैंने आप एक मिनट भागे नहीं, आप पहले कुरान पाक की बातें नहीं करें इनसे, इधर उधर की नहीं, मैं सही बातें कर रहा हूँ। सही बात है। आप सबसे पहले कुरान पाक से बताओ मैं सही कि बातें कर आपका जो तरीका है वो कुरान पाक के कौन से बारे में, कौन सी सूरत में, कौन से रुकू में, कौन सी आयत में आया है। सबसे पहले जो है कि आप कुरान पाक से बताओ। ये है कुरान पाक। मैं लाता हूँ कुरान कुरान लाओ, बगैर तर्जुमे वाला लेके आओ। असल में हम लोग जागरे नहीं बोलेंगे, कुरान बगैर तर्जुमे वाला शब्द गला कुरान पाक में देखो, अगर समझ के अंदर नहीं आए अच्छा सारा कुछ देख लो, एक को हमें सारा कुछ देख अगर आप इस बारे में जानते हो तो हमें किस लिए बुलाया आपने? सुनो ना एक मिनट, फिर जाओ किस पे चीज है ठीक है, अगर आप इतना जानते हैं तो आपने हमें किस लिए बुलाया भाई? मौलाना इन्होंने नहीं बुलाया आपको, आपको जिन्होंने बुलाया आप उनसे बात करो, उन्होंने बुलाया। कैमरा थोड़ा पीछे दिलाओ रे, बिच खड़े हो कुरान लेके खड़े हो जाओ। अरे ये फोटो वाला थोड़ा पीछे दिला लो, जिसे लाना नेड़े आ गया वो मीडिया लग रहा है, ये फोटो पीछे लाओ, जिसे लाना तो पीछे ले ले खड़ा कर देखो वाला के आ चुके हो। क्या इख्तलाफ है आपको दुरूद शरीफ पढ़ने से, क्या दिक्कत है आप ये कहाँ बताइए। चले गए आप? कहाँ चले गए? इसकात तो शुरू करो आप पहले। इसकात में शुरू कहाँ करो। से? मौलाना इसकात की इसकात पहले पे करो, उसके तरतीब बाद से चलें। चलें, तरतीब से चलें। आप जब लिखा हुआ उन्होंने मसला भाई कुरान शरीफ से बता रहा हूँ ना, मसले 4 है ना। मौलाना आप पहले एक मुकम्मल चारों करेंगे, उसके चारों बाद मसाइल दूसरा पहले चलेंगे। परेशान हो रहे हैं। पहले शिकात का मसला चले ना, सकात का मसला हो, पहले सकात का मसला है ना भाई, हम बोल रहे हैं और सवाब नहीं है, यहाँ पर सवाब मुरादा दुरूद नहीं है। आप पहले सकात का मसला लेंगे। दुरूद का मसला नहीं है, नहीं, सलात का मसला सलात का है। 4 मसाइल जो सकात का मसला सबसे पहला है, और उस सकात के मसले को आप कुरान पाक से दिखाएं, पहले उसको हल करें, फिर उसके बाद जो है कि आगे क्या करें। भाई आप अदम जवाज का शिकायत से कुरान शरीफ से नहीं, हम क्यों करें मौलाना? इसकात का आप भाई, सामने हम दिखाएंगे। जब आप इतने दावा कर रहे हैं तो क्यों नहीं दिखाएंगे आगे? आप जब मौलाना आप क्यों नहीं दिखाएंगे? सुनिए मेरी बात, आपको दिखाना पड़ेगा। आपको देखिए, हम सब कुछ साबित करेंगे। हम ये भी साबित करेंगे कि आपका कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये भी साबित करेंगे यहीं पे, आप ही की किताबों से। हम सुने इतने इससे हमारे पास भी उलमा बैठे हैं, मुफ्ती बैठे हैं यार। इनको कलमो तुम इतने बड़े काबिल हो गए, उठ के उसके ऊपर लड़ने नहीं वाले। कर सकते। गुलामी लेके जाएंगे। मौलाना आप लाइन पर आओ, लाइन पर आओ, ये नहीं चलेगा आपका। आप हद में जवाजियत हमें क्यों पूछ रहे हो? अदम जवाज का गुलामी लिख देगा। हमारी आदमी जवाब हम सारों को साबित करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, आपको ये पता नहीं है, जब आप अपना जवाब साबित करेंगे हमारे आदमी जवाजियत साबित हो जाएगी। हमें सब मालूम है। करो ना फिर। लगता है कि आपको नहीं पता। मैं कह रहा हूँ
करो तो हमें नहीं पता आप जवाजियत साबित करेंगे, हमारे आदमी जवाजियत खुद साबित करेंगे। आप खुद बताए ना कि कुराशी में ये इसकात जो है वो नाजायज हराम लिखी है। करते आप है ना, आप बताए ना, करते आप है ना, हम क्यों बताएंगे? करते आप है ना, फतवे तो आप लगाते हैं कि शिर्क का बिदअत हराम है नाजायज। करते आप है ना, आप करो साबित। भाई फतवे तो आप दे रहे हैं, क्यों? आपको मौलाना ये छोड़ो, आप यार फतवा लगाते हैं नहीं, आप साबित इस करो। वजह से आप साबित नहीं कर सकते, कुरान से साबित नहीं करोगे। भाई आप एक मिनट, आप छोड़िए ना, आपको सलात से बहुत ज्यादा इसको बंद रखो आप। क्यों बंद रखना? ये किताबें हार होगी, आप याद रखना, इससे भागना पड़ेगा। ये लोगों को दिखाइए लिखा हुआ हम किताब नहीं मानेगा, कुरान से साबित करें। मोतबर किताबों से ये बात नहीं चलेगी। आप पहले साबित करो कुरान से। उर्दू की हम नहीं किताबें मानेंगे, वैलिड है ही दिखाओ नहीं, पहले। अरबी की किताबें पहले। अच्छा, जो आपके आप सफेद कागज पर लिख दें जो मौलाना आप लिखिए, आप लिख के दे दें हमें। आप लिखना, आप लिखिए बैलेट नहीं है, आप लिखिए पर्चे में लिख के दे दें। आप लिखिए रिसाला अल इमदाद बैलेट नहीं ये है, कोई किताब बैलेट नहीं। आप लिखिए फतवा किताबों को लिखने का टाइम नहीं है। आप लिखिए हदायत औलिया बैलेट नहीं है, आप पहले जो है ये सबसे पहले ये उनको रहने दो, इन पर मुनाजरा करना होगा। हम करेंगे आपको जवाब नहीं होगा। इस पे होगा सर, इस पे होगा इस पर नहीं होगा। ये कौम को आपको खिलाफवर्जी कर रहे हैं आप, यही करते हैं आप लोग, आप लोग ये नहीं करते हैं, यही करते हैं आप लोग। आप खड़े हुए, आप बैठे नीचे, आप दो लोग हैं। आप मैं ये आपको ये कह रहा हूँ, बोला ना, आप मुझे पढ़े लिखे आप मालूम दे रहे हैं, ये तो बिल्कुल मुझे मैंने देख लिया। इसलिए कि मेरे सवाल को आप नहीं नहीं नहीं, मैं जो आप बिल्कुल पकड़ रहे हैं साहब। आप दोनों सर ये मुफ्ती तय करके पब्लिक आप भी बैठे, पकड़ेगी बड़े आपके संजीदा सवाल को आदमी सरवर साहब, अभी पकड़ेगी। हैं। अगर इस तरह के लोग हों तो बाखुदा कौम के अंदर ये परेशानी नहीं होती। तुम्हें समझ में आ रहा है। अरे तुम्हें कुछ पता मेरी नहीं है, बात नहीं, आपको ये कह रहा हूँ, कुछ मालूम गुस्सा नहीं है। गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, वो देखो आपको समझ में नहीं आ रही ये है। बंदा ये बात करने के सलीके के मैं लायक आपको ये कह रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल हड़गर्मी कर रहे हैं, दूसरे बंदू को पीछे बिठा रहे हैं। आपको भागने नहीं दे रहे, बारी ना बोलना, छोड़ो, आप मैं भागने नहीं दे रहा। अरे छोड़िए सरवर साहब, जो भागने नहीं देता है वो हम अभी भागेंगे मैं इंशाल्लाह। नहीं भागने दे रहा। आप इसी कौम से जाएंगे, मैं अभी नहीं भागने दूंगा। पहली जाएंगे बात इंशाल्लाह। मुझे मालूम है ये सारे साबित आप लोगों को आपने धोखा दिया और यहाँ पर आए हैं यहाँ, इनको आज कुरान से साबित करना पड़ेगा आपको। इनको पहले कलमा पढ़ाओ। तुम्हें इतनी बड़ी परेशानी। पहले मुझे आप कुफर का फतवा लगा दीजिए मौलाना। अरे छोड़ो, कुफर का फतवा कौन कुफर का फतवा लगाओ आप। आपने कहा कलमा पढ़ाओ, लगाओ कुफर का फतवा। मुसलमान को कलमा पढ़ना चाहिए। नहीं ये कह रहे हैं कलमा पढ़ाओ। आप पढ़िए, खामोश हैं आप। आप खामोश हैं, इन्होंने जो बात आप पढ़िए ना, आप पढ़िए, मैं पढ़ता, सुनो जी, मैं पढ़ता। ये कौन सा मसला किया आपने? मौलाना सरवर कब आ गया? पहले मसला वो साबित करो। सुनो मौलाना पहले साबित करो, ये काम साबित करो, इसको छोड़ो। जो अपना काम है अरे इसके लिए सुनो मौलाना, झूठा सुन लो, परेशान कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, आप परेशान कर रहे हैं। सुबह कयामत तक ये चैलेंज है तुम लोगों को, सुबह कयामत तक इन चीजों को नाजायज साबित नहीं कर सकते। आप साबित नहीं कर सकते। आप नाजायज साबित नहीं कर सकते। सुबह कयामत तक याद आप कुरान से साबित नहीं कर सकते। आप साबित नहीं कर सकते। आप साबित नहीं कर सकते। करके दिखाओ कुरान से साबित। आओ कुरान से साबित करके दिखाओ। ये बुखारी पढ़ी है, तिरमिज़ी पढ़ी है, एक किताब से हदीस निकाल कर दिखाओ। आओ दिखाओ। नहीं देखो उन दोनों के दरमियान जो है कि गुड़मुड़ करने वाली बातें हैं। जब मुफ्ती साहब दरमियान हलाल गुस्ताखी माफ करना, एक मिनट गुस्ताखी माफ करना, एक मिनट यार, एक मिनट गुस्ताखी माफ करना। जो सवाल पूछे उसको जवाब देना मेरा भाई है। देखो ये बखरे दुश्मनी है और मेरे भाई देखो क्यों नहीं, अरे ये नस्ल भाई तो क्यों कितना फसाद कर सवाल अजी एक मिनट दो
जी ने ला ली अपनी बहस। एक मिनट खाली मेरी गल बे लापे एक दूसरा कह रहे तो कलमा पढ़ दे तो मुसलमान पढ़ हमने जो चार मसला लिखा हुआ मसला में जवाब हेलो एक मिनट जेड़ा देखो मुफ्ती साहब देखो तम आलम है तम आपस में गुफ्तगू करनी है तो लग करियो हमारे सामने एक दूसरा तम ऊंचो करने नीचो करने की कोई जरूरत नहीं तम जम्मू में बैठ गए तम कुछ में बैठ गए सुनियो देखो चार मसले हैं उनके जवाब दे दो जो चार मसले हैं हमें सिर्फ दो बता दो जायज है कि नहीं बस हमें चार मसले ये नहीं बताएंगे ऐसे ही करना है इधर उधर आप बता दो ना यार आदमी जवाब क्यों बताएंगे आप जवाब सही नहीं करेंगे मौलाना हमारे आपके जवाब के साबियत पर करने पर हमारा अदम जवाब आएगा बताते तो आप ही ना जाए हराम है आप कुछ पढ़ ज्यादा लिया आपने ना माशाल्लाह आपको बैठना चाहिए था सामने नहीं पढ़ा लिखा आपने कहा मुस्तहब है, बताओ कहाँ लिखा है आपने बताया आप ये बताएं कि कहाँ नाजायज लिखा है हराम कहाँ लिखा है पहले अरे इस कौम को ये वादे कर दो ना नाजायज कहाँ है ये सलात पढ़ना कहाँ नाजायज है सलात देना कहाँ नाजायज है ये बता दीजिए ना ये नहीं सुनाएंगे ये नहीं बताएंगे ऐसा है आप बता दीजिए ये चार मसाइल जो लिखे हुए हैं ऐसे यूं ही लिख दिए एक इसका जवाब तो जोड़िए वो भी नहीं एक इसकात कर रहे हैं आप एक को भी देता तो शर्फ तो एक को लगा नंबर 2 से बताता हूँ मैं आपको ठीक है ना मैं बताता हूँ आपको नंबर 1 से भी नंबर 2 से नंबर 3 से हुआ था तो मैंने इनसे सवाल किया था मैंने कहा यार हमारे यहाँ पहले भी जनाजे होते रहे अब ये जो नया जो शिकायत का मसला शुरू हुआ मैंने कब्रों पर उस टाइम कहा मुझे एतराज़ हुआ था तो मुझे कहा यार हमने आज तक देखा नहीं ऐसा मसला पहले भी जनाजे होते रहे तो ये नया तरीका शुरू हो गया तो यार अगर किसी के पास है तो हमें बताओ हम भी करें हम क्यों नहीं करें हमारे क्यों बगैर सबाब के जाए मुद्दे तो कुछ लोगों ने कहा जी हमारे पास लिखे हुए हम बताएंगे हमने कहा ठीक है लिखे हुए तो बताओ हम तो वो सुनने आए जो आपके पास लिखे हुए हैं आप लोग करते हैं हमें बताओ हम भी करें अगर जायज़ है तो बताओ हम भी करें हमने पहले देखा नहीं है ना हमने किया कभी ना हमें किसी ने बतलाया कि तुम करो आप लोग करते हो तो आप लोगों से हम सुनना चाहते हैं अगर आप लोग इसको कर रहे हो जायज़ है तो हमें बताओ हम भी खूब जो है जोर शोर के साथ करें मतलब हमने ये लेना है यही बात है इनमें कौन मुफ्ती था जिसको ये सवाल किया आपने जो करने वाले थे उनको सवाल किया उनमें कौन मुफ्ती था जिसको ये सवाल किया जो करने वाले कुरान शरीफ का हुक्म है फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून इसलिए उन्होंने इनसे करना चाहिए लाया जो आपको बता रहे नाजायज हराम है किया था कि मैं ये साबित करके जाऊंगा तो इसलिए वो आपको लाया है जिस काम के लिए लाया वो कीजिए फालतू बातें मत कीजिए सुन मेरी गल क्यों है ना भाई एक वाला नहीं बोल रहा हम तो नहीं बोल रहा है मसलो है तो मसलो आज तक तो बोलियो हम बोल रहे हम बोल रहे तुम ना बोलो तुम्हारी सुन मसला और बहस हुई थी मैं उस मसला भाई मेरी गल सुना तेरा हमारी भी सुनना हम जो कह रहे हैं शुरुआत पढ़ना कित मने नहीं हम तरफ चार काम में तरफ तो ये जो दूसरी जिस गल वास्ते खड़ा गया मैं थोड़ा माफी देनी थोड़ी 2 मिनट गल सुन लेनी मारा मैं बाप अपना सुनायो आयशा उसने को सुनता रहो ना ताई ने को अच्छा वो मसलो करूँ पहला एक उसके बाद में किसी ने कहो जी जरा जैसे मैयतों जनाजों पढ़ियो तो फौरन जी दुआ मंगे जानी या भी साबित करो अच्छा 2 चीज़ हो गई इसके बाद आ गई जी जाने कदम पढ़े या कुछ भी पढ़े या अजान जे सलातो सलाम पढ़े जरूर अच्छा या अच्छा ये जी 4 गल है जी ये बारो बारी ये दसो कुरान दे दो हदीस दे ये समझ नहीं आ गई तो अगे भी चलो अच्छा नहीं एक मिनट थोड़ा गल मेरी गल सुनो सब पहला कुरान दे अगर समझ के अंदर नहीं जाओ तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरवाजे पर जाओ हदीस की किताब है शेख सित्ता की बुखारी है मुस्लिम है तिरमिज़ी है अबू दाऊद है इब्ने माजा निसा उन्होंने देखो
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਮਝ की ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ नहीं आवे ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ इंशाल्लाह ठीक कह रहे हैं देखो अगर एक इंसान हर इंसान ना हक है हाँ अगर ये दो मुफ्ती बैठा हुआ है इन्होंने हक है बोलने को ये भी दो बैठा है वे भी दो बैठा हुआ है बार इसमें इंटरफेयर होने की कोई जरूरत नहीं है अगर ये गल करें हम सुन मस्त आया बिल्कुल ठीक है नहीं अगर ये सवाल कर सकें ये भी सवाल कर सकते हैं नहीं पर उन्हें मुद्दा में करो ना सारी गल आपने साहब सारी गल अच्छी हमने नहीं लेना भाई सिर्फ हाफिज हमें को आदमी नहीं किसना लड़ाई ये सवाल कर सकते हैं ये भी सवाल कर सकते हैं गल जेड़ा दस्से वो अगर ये साबित करें अगर एक बात का जवाब लेना अगर हम तब भी खड़ा हूं जेड़ा सुनना की होगा अगर एक मिनट मेरी भी सुन ले या तहरीर में लिखी मैं समझाऊंगा कि करम ने लिखी क्यों कुछ ये मेरा तो पहला नहीं खड़ा है पहला मैं खड़ा अगर डेरा पे कोई आयो ये चार कार नहीं होता है एक इत कहना वास्ता है कि तुमने इस कार भी कहना से दावत देनी है उस कार भी दावत देनी है उस कार भी दावत देनी है अब वो उन चार बच्चों किसी ने पहला दिया किसी ने बाद में दिया उसमें कोई रुकावट किसी की नहीं है कहते पहले उसका डेरा में देने कहते उसका डेरा क्यों दी थी अगर ये शिकायत वास्ता पूछे अगर ये दुरूद 12 में दस्ते या भी दुरूद में कहना क्या आजाद हम नहीं समझ सकते एक ही बात हमारी समझ की बात नहीं है कि इन्होंने कहा कि परेशान हो गए आप दुरूद के नाम से मौलाना नहीं मौलाना ये सबसे पहले दुरूद पे बात करूंगा और बरकत दुरूद से सारे मसाइल हम क्या बात करें तसल्लुक से सब कुछ बता आप कहाँ जा रहे हैं साबित कर तहरीर में हमने लिखी एक मेरे सुनो रे सुनो जवाब दे नहीं बाजू दिला तभी गिदड़ की तरह मार पता क्या है सारे साथी जो आप सुनो आस्ता फरमा रहा हूँ मैं आस्ता आस्ता आप सुनो देखो जनाब उसमें तारिफ साहब उधर ही थे ना बैठ जाओ बस तालिब साहब आप ही करो ते और कोई साथी भी कौन है इसलिए हमने आपने बोल जाओ तब तो आप उसने जी हमने लिखी थी सारा ने पहले वो बताया खत्म के बैठे और दरूद ही जैसे जुमा के बाद तो उस वक्त इन्हें तारिफ साहब ने लिया किताब याद है तो उसके बाद इन्हें इस गाल को मसलो दस्यो तो मैं क्यों कुरान की आयत को इसके अंदर लिखी हुई है हदीस को इसके अंदर लिखी हुई है बुखारी मुस्लिम तिरमिज़ी लिखी हुई है इन्हें देखिए सारे के नहीं लगी इन्हों क्यों फिर मैं क्योंकि आप कैसे साबित करते हो जब हदीस नहीं है कुरान नहीं है कोई कुरान की आयत दसो कोई हदीस दसो इसका बारे में तो हम बनना है सारा करा तो काफ़ी सारा लोग आ तीड़ा इसलिए इस बैठा हुआ होना वो भी होना तो उसके बाद ये तालिब साहब ने क्यों कि हम इसको कुरान से भी साबित करेंगे और हदीस से भी साबित करेंगे क्यों हो नहीं सारा कौन उस यार आप क्यों बोल रहे हो बाकी चुप ठीक है तुम दो ही करो हाँ कुरान से भी साबित करेंगे और हदीस से भी साबित करेंगे और शफी साहब उतने ही बैठा कुरान और हदीस से हाँ क्यों मैं जा लेना एक मिनट इसकी चाचाई सुन लो आप मुझसे पूछिए मौलवियां भी मजा आ गया सारे मौलवी ने जल्दी उन्हें शबी की शफी साहब भी होते हैं शफी साहब यही क्यों नहीं कुरान और हदीस से हम दसांगा हमने क्यों